good morning, hello. Okay, most of the students are joined, no? Just in the previous class, we have discussed about how many questions? 6 questions, okay. So now, just in continuation, let us solve one by one questions from 2.1 exercise, okay. So here question 7, question 8, very simple questions. You can give answer very easily. So find the principal value of sec inverse 2 by root 3 and find the principal value of cot inverse root 3. So tell me what will be the answer of 7, because these two questions are very simple. Just like we have seen in the previous class that for finding principal value of inverse trigonometric function, we are trying to convert function as a sine of, cos of, tan of, and angle should be belongs to the range of the principal value branch of inverse trigonometric function, okay. So here sec inverse 2 by root 3, principal value of sec inverse 2 by root 3. So tell me what will be answer? Very simple. Sec inverse 2 by root 3. Here given sec inverse 2 by root 3. Sec inverse 2 by root 3, that means what? Just we are supposing let this is equals to y, then what? Sec y equals to 2 by root 3. This is equals to what? What value we can write in terms of sec? We know cos 60 equals to root 3 by 2. So what? Sec pi by sec root 3 by 2 cos 60. No, cos 30, sorry, cos 30. So sec 30 means 2 by root 3. So sec 30 means pi by 6. And pi by 6 belongs to the belongs to the range of the principal value branch of sec inverse function. So sec inverse function, what is the range of this? Remember the table, range, what is the branch is? Sec inverse, cos का जो ब्रांच होता है उसमें से क्या निकालना पड़ेगा? हेलो, कॉस के ब्रांच से क्या निकालते हैं? कॉस का ब्रांच क्या होता है? 0 पाई, और इसमें से क्या निकाल देते हैं? हेलो, 0 पाई में से क्या निकालना पड़ता है? सेक माइनस पाई बाई 2. दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू branch of sec inverse. So pi by 6 belongs to this or not? 0 pi minus pi by 2. Pi by 2 नहीं है इसमें, but pi by 6 belongs to this ना. Therefore sec inverse 2 by root 3 equals to what? Pi by 6. Because this value angle should belongs to the principal value branch of sec inverse function. Similarly, tell me answer of 8. Question 8 का आंसर क्या होना है? 8 का आंसर cot root 3. Let cot inverse root 3 equals to y implies cot y equals to root 3. Cot. So how much angle is required for cot of tan 60 root 3. So cot में क्या होना है? 30.
So cot pi by 6 also. Here cot inverse, the principal value branch of for cot inverse क्या है, and pi by 6 belongs to, जैसे cot inverse का principal value branch, cot means cos by sin, साइन वाले में से क्या निकालना पड़ता है, हेलो, माइनस पाई बाई टू, इसमें से क्या निकालना है, कॉट, कॉट मीन्स कॉस बाय साइन, 0, यही था ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, हेलो, कॉट ना, हाँ ये गलत लिखिए ना, 0 पाई, सॉरी, ठीक, 0 पाई, ओके। सो टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, रेंज को याद रखना है हमेशा, वो जो कल बताया था ना टेबल में, वो टेबल याद रखना है ऑलवेज, ओके। पाई बाई 6 ये है, तो इसमें तो है पाई बाई 6 लेस देन पाई, सो दिस बिलोंग्स टू दिस, देयरफॉर आल्सो इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, देयरफॉर cot inverse √3 इक्वल्स टू आल्सो व्हाट, पाई बाई 6। नाउ टेक क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 लेते हैं, क्वेश्चन 9 में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, और ये 12th क्वेश्चन है, वो सिंपल क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन 9, cos इनवर्स माइनस 1 बाई √2, cos inverse minus 1 by √2, this is equals to y, let, यही टेक्निक है। So cos y equals to minus 1 by √3, now we have to write its value in terms of what, cos inverse minus 1 by √2, sorry 1 by √2 not √3, 1 by √2, ओके। क्या होना है, 1 बाई √2 मीन्स हाउ मेनी एंगल्स, कौन सा एंगल चाहिए, हेलो, माइनस रखना है, cos 1 बाई √2 पाई बाई 4, सो cos पाई बाई 4, नाउ माइनस को एडजस्ट करना है, माइनस साइन को अंदर करना है, सो क्या करना है, व्हाट we have to do, cos of something, pi plus minus, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, cos pi प्लस और माइनस, और माइनस करें तो क्या हो रहा है, cos pi minus theta equals to what, minus cos theta, cos pi minus theta equals to minus cos theta, so क्या होना है, ये इसकी इक्वल है, सो इट कैन बी रिटन व्हाट, cos 3 pi by 4, so we get cos of y equals to this. Now if this angle belongs to the principal value branch of cos inverse, then it will be the value, okay, so 3 pi by 4, 3 by 4 that is less than pi, so 3 pi by 4 less than pi, also 3 pi by 4 belongs to cos inverse का क्या होता है, cos inverse का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, हेलो, टेल मी, कोई बोलो, cos inverse का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, 0 and pi not, interval, closed interval 0 pi, closed interval 0 pi, this is the principal value range, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बार बार, ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, किसका, cos इनवर्स का, सो ये पाई से लेस वैल्यू, 3 pi by 4 less than pi, so pi से लेस है, therefore we can write y equals to this as a principal value, y means this, therefore cos inverse minus 1 by √2 equals to what, 3 pi by 4, so simple process है,
Similarly, tell me for आंसर फॉर क्वेश्चन 10 के लिए बताओ आंसर। 10 के लिए क्या होना है? कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। सब लोग कॉपी पेन लेके बैठो पढ़ने के लिए। सो लेट मी आंसर, बताओ आंसर बताओ क्या होना है? कौन सा क्वेश्चन? 10, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। सो दिस इज कोसेक, y इक्वल्स टू माइनस रूट 2। सो व्हाट वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं कोसेक के लिए माइनस रूट 2? हेलो, कोसेक माइनस रूट 2। सो माइनस रूट 2 कोसेक ऑफ व्हाट? कोसेक कितना का होना है? हेलो, कोसेक पाई बाई 4। पाई बाई 4, गुड, पाई बाई 4। सो अब क्या करना है, ये माइनस ना रहे, सो वो फॉर्मूला लगाना है अभी, पाई प्लस माइनस। बट रिमेंबर, साइन एंड कॉस में माइनस कैन बी टेकन इनसाइड, आउटसाइड। सो हियर आल्सो साइन के लिए होता है तो कोसेक के लिए भी होगा। सो वी कैन राइट कोसेक माइनस पाई बाई 4 आल्सो, बिकॉज साइन और कॉस, कोसेक जो है इनवर्स है। सो ये भी हो सकता है, जब साइन होता है तो माइनस को अंदर कर देते थे ना, कोसेक में भी अंदर जाता है। सो इंप्लाइज कोसेक y इक्वल्स टू दिस। अब y की वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू होना है इफ कोसेक इनवर्स के रेंज में हो, ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में। सो क्या होना है? आल्सो माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू, है क्या इसका? कोसेक इनवर्स का क्या है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज? कोसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो साइन का होता है उसमें से किसको हटाना पड़ता है? 0 को, बिकॉज कोसेक इक्वल्स टू व्हाट? 1 बाई साइन, साइन 0 इक्वल्स टू 0। सो 1 बाई 0 इन्फिनिटी, 0 को हटाना है, बात ये रहेगा। ओके, सो ये कौन सा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है? कोसेक इनवर्स का। सो देयरफॉर कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इक्वल्स टू, we can write minus pi by 4. Similarly, you can solve question 11. इसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो क्वेश्चन 11, here 3 values you have to find and then adding that value. Okay, so question 11 का आंसर निकालते हैं फटाफट, है ना? क्या करना है? डायरेक्ट लिखना है। फर्स्ट वैल्यू इज व्हाट? tan इनवर्स 1 एंड cos इनवर्स माइनस हाफ एंड sin इनवर्स माइनस हाफ। सो टेल मी tan इनवर्स 1 का क्या होना है? हेलो, tan इनवर्स 1 की वैल्यू शॉर्ट में लिखना है। ओके, सो 11 वी हैव tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू पाई बाई 4, बिकॉज tan इनवर्स y इक्वल्स टू लेंगे तो पाई बाई 4 लिख ही सकते हैं। tan पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 आएगा ना, 10 आगे फॉर्मूला आएगा, बट यहाँ डायरेक्ट लिखने जा रहे थे। यहाँ पर क्या है, वही मेथड है, तीनों करके दिखाना पड़ेगा। ये जो 3 पॉइंट है ना, tan के लिए, cos के लिए, sin के लिए। सो ये अगर लिखेंगे ना y, सो इंप्लाइज क्या लिखना पड़ेगा? tan y इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 implies tan inverse 1 equals to pi by 4 since pi by 4 belongs to, शॉर्टकट में लिख देना, since pi by 4 belongs to इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है? 10 का। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ 10? 10 का क्या है? हेलो,
वो याद रहना है। जो साइन क्या रहता है उसमें से एंड पॉइंट्स को हटा देते हैं। 10 का एनीवन टेल मी क्या होना है? टेल मी वेरी फास्ट, क्या होना है? टेन का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, एनीवन टेल मी, बोलो। हेलो, Open bracket pi minus pi by 2 and pi by 2. 10 का जिसमें से एंड पॉइंट्स को हटा देना है ना, साइन का एंड पॉइंट माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ओपन इंटरवल बोलना है, ब्रैकेट नहीं, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। सो उस रेंज में तो है, पाई बाई फोर इसी के अंदर का है, इसलिए लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, सेकंड पोर्शन cos इनवर्स माइनस हाफ y, cos y इक्वल्स टू माइनस हाफ माइनस cos पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री मींस क्योंकि हाफ है ना, cos 60 इक्वल्स टू हाफ, cos 60 को हाफ होता है ना। हेलो, cos 60, हाँ, तो आगे क्या करना है अभी, cos 60, ये माइनस cos के अंदर तो नहीं जाता है। सो मेथड क्या है, देखो जानना जरूरी है, बात क्वेश्चन ढेर सारे होते हैं। क्या करते हैं, पाई प्लस माइनस, जनरली पाई प्लस माइनस में सेट नहीं हो जाता है। सो क्या लिखना है यहाँ पर, cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई थ्री, cos पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। सो ये इक्वल टू दिस, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो वहां क्या हो जाएगा, cos 2 पाई बाई थ्री, सो दिस इज इक्वल्स टू cos 2 पाई बाई थ्री, cos 2 पाई बाई थ्री। नाउ cos 2 पाई, जो 2 पाई बाई थ्री है वो इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज वी कैन राइट लाइक दिस, शॉर्टकट में लिख रहे हैं यहाँ पर, माइनस हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई थ्री, बिकॉज 2 पाई बाई थ्री जो है लेस देन पाई है, और ये cos इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है। cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है, हेलो, cos इनवर्स का इंटरवल 0 पाई, 0 पाई, गुड, ओके, ये हो गया। बस दो की वैल्यू आ गया। थर्ड वैल्यू साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन इनवर्स माइनस हाफ इक्वल्स टू y implies sin y equals to minus half. It can be written as minus of what, sin y equals to minus half, minus half sin के फॉर्म में half means minus of sin half means 30 डिग्री, 60 पाई बाई 6, 30 डिग्री पाई बाई 6, ओके। पाई बाई 6। अब इसमें माइनस को अंदर कर लेंगे, बिकॉज साइन है, साइन हटाना है, माइनस साइन मीन्स साइन में माइनस पाई बाई 6, ये हो गया। सो क्या मिला, साइन वाई इक्वल्स टू दिस। अब वाई, वाई मीन्स व्हाट, ये साइन इनवर्स ऑफ दिस वाई। सो वाई की वैल्यू ये होना है, इफ इसी के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में हो, इंप्लाइज साइन इनवर्स माइनस हाफ इक्वल्स टू, आई थिंक माइनस पाई बाई 6 है उस रेंज में, माइनस पाई बाई 6 किसके रेंज में होना है, साइन इनवर्स के, साइन का, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इस रेंज में है। नेगेटिव वैल्यू है, पाई बाई 6 है, यहां पर होगा, यहां पर, सो बिलोंग करता है। तो तीनों की वैल्यू आ गई। सो 1 बाई 1 एक एक करके निकाला, ये निकाला, ये निकाला, फिर ये निकाला, तो फाइनल वैल्यू ऐड कर देना है, ओके। thus we get the value as thus required value equals to, पहला वैल्यू पाई बाई 4 था, दूसरा वैल्यू क्या था, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 and minus पाई बाई 6. So this is equals to what? Tell me क्या हो जाएगा प्लस माइनस करने के बाद, फाइनल वैल्यू, हेलो
एडिशन आता है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन. सो व्हाट विल बी द वैल्यू फाइनल? दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या होना है वैल्यू? कॉपी पेन लेके बैठे हो सब पढ़ने, टेल मी. 3π/4. 3π/4. Okay, good. 3π/4 is the answer. 11. Now take question 12. सिंपल क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है. अभी ऑब्जेक्टिव टाइप है. नो, ऑब्जेक्टिव टाइप 13 एंड 14 है. 12. सो इसका आंसर निकालना है. ओके, इसमें क्या होगा? cos इनवर्स हाफ एंड 2 sin इनवर्स हाफ. सो cos इनवर्स हाफ एंड sin इनवर्स हाफ की वैल्यू निकाल के वैल्यू लिख देना है. सो इसको वेरी शॉर्टली, एकदम शॉर्ट से करो. सॉल्व करने बैठे हो सब, है ना? अपने से ट्राई करो. cos इनवर्स हाफ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. cos इनवर्स हाफ इक्वल्स टू व्हाट? cos इनवर्स हाफ अगर है तो क्या होगा वैल्यू? cos y इक्वल्स टू हाफ इक्वल्स टू cos ऑफ हाफ कब होता है? पाई बाई cos y. cos दिया ना इसमें, cos इनवर्स हाफ है. हाफ मीन्स कौन सा डिग्री आ गया यहां पर? एंड sin इनवर्स हाफ इक्वल्स टू y इंप्लाइज sin y इक्वल्स टू आल्सो हाफ. यही तो है, बिल्कुल सिंपल है. डायरेक्ट वैल्यू बताना है. यहां पर क्या होगा? पाई बाई 6 और 3. व्हाट? पाई बाई 6 3. पाई बाई 6 ना, 3 60 डिग्री पर cos 60 ना, 3. और यहां पर sin पाई बाई 6. और वही प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है. cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज और sin इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज. तो क्या हो जाएगा वैल्यू? दिस इंप्लाइज cos इनवर्स हाफ इक्वल्स टू पाई बाई 3. पाई बाई 3 तो है cos में. cos का रेंज क्या होता है? 0 टू पाई होता है. और sin का क्या होना है? माइनस पाई बाई 2 होता है. तो ये पाई बाई 6 उसमें है. सो इंप्लाइज sin इनवर्स हाफ इक्वल्स टू आल्सो पाई बाई 6. सो आंसर क्या हुआ? देयरफॉर cos इनवर्स हाफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin इनवर्स हाफ. sin इनवर्स हाफ इक्वल्स टू पाई बाई 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 into पाई बाई 6 इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3. सो दिस इज आंसर 2 पाई बाई 3. बिल्कुल सिंपल था. वही वैल्यू निकालना है बार बार, है ना? नाउ क्वेश्चन 12 एंड 13 13 एंड 14. 13 एंड 14 जो है ऑब्जेक्टिव है. आंसर बताओ. 13 वेरी सिंपल, बिल्कुल डायरेक्ट 10 सेकंड में आंसर देना है. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 13? गिव द आंसर. If sin inverse x equal to y, then y belongs to y what? Sin inverse x. Inverse sin inverse function x. sin inverse का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है क्या होता है? हेलो, sin inverse x equal to y means sin inverse x equal to y. y belongs to y किसके बीच में है? कौन सा? a है, b c d. ये तो साइन इनवर्स फंक्शन है ना यहां पर जो y है. साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज. हेलो, क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2. कौन सा? b की d? हेलो, आइदर b और d. b होना है. क्लोज्ड इंटरवल है ना. क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 ये होता है ना. माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ये तो होता है. दिस इज क्लोज्ड. और ये भी तो होता है किसी जगह पे ना,
पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये ओपन, ये डी में लिखा हुआ है और ये बी में लिखा हुआ है, बी इज राइट आंसर, बी ये वाला है, ये आंसर, राइट आंसर बी। ओके, Okay, sir. and one question also there for as objective this. Okay, tan inverse root 3 and minus sec inverse minus 2 शॉर्ट में करना है, फटाफट आंसर बताना है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बिकॉज दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक inverse trigonometric functions, so you have to know all the formula of trigonometric functions related from 11th class, सभी फॉर्मूला पता होना चाहिए हर एक जगह पे। नाउ द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज यू मस्ट नो, एंड साइन इनवर्स का क्या मतलब होता है, साइन का क्या मतलब होता है, ये पता होना चाहिए, तब आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। सो यहाँ पर tan इनवर्स रूट 3 क्या होता है, tan इनवर्स रूट 3 डायरेक्ट लिखो, tan इनवर्स रूट 3, you know what tan inverse root 3 means what, tan inverse क्या होता है, tan inverse root 3 means 60 pi by 6, root 3 की जगह क्या होता है, 10 pi by 6 no pi by 3, 60 डिग्री ना, 10 60 pi by 3, so its value can be written pi by 3। okay, और सेकंड वैल्यू क्या है, sec inverse minus root 2, sec inverse minus 2, sec inverse minus 2 की वैल्यू क्या होना है, यहाँ पर रफली कर रहा है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देना है। ये अगर y है तो क्या होगा, sec y इक्वल्स टू माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस sec ऑफ व्हाट 2 आना है। cos की 30 में वैल्यू 1/2 आता है, उसको इनवर्स करोगे तो sec बनेगा, तो sec व्हाट क्या लिखना है यहाँ पर, पाई बाई व्हाट 6 cos 60 ना, हाँ 63, यस। और फिर क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये माइनस साइन है, सो माइनस अंदर तो जाएगा नहीं, सो नेगेटिव होता है कहाँ पर, सेक पाई माइनस में, सो सेक पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, और ये 2 पाई बाई 3 सेक इनवर्स के रेंज में आता है। सेक इनवर्स का क्या होता है, सेक इनवर्स का जो कॉस इनवर्स का है उनमें से क्या हटाते हैं, 90, इस रेंज में ये वैल्यू है ना, 2 पाई बाई 3 मींस लेस देन पाई से लेस वैल्यू है, बट पाई बाई 2 नहीं होना है, तो पाई बाई 2 तो है नहीं, है 2 पाई बाई 3 है, तो ये होगा वैल्यू, ये होगा एक वैल्यू ये होगा, और वैल्यू क्या निकालना है, माइनस करना है पहले वाले वैल्यू से, पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3। ओके, सो क्या आंसर आना है, माइनस पाई बाई 3 आंसर है, माइनस पाई बाई 3 कहीं पर, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, हेलो, बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, दिस इज एंडिंग ऑफ द एक्सरसाइज 2.1। now our topic, because ये चैप्टर बहुत छोटा है, very important, but okay, so you can see next topic is what, properties of inverse trigonometric function, and exercise 2.2 we will discuss about it, properties of inverse trigonometric function। inverse trigonometric function का नाम property, लास्ट ईयर इस प्रॉपर्टी को हटा दिए थे कोर्स से, बट दिस ईयर कंप्लीट सिलेबस विल बी यूज्ड, रिड्यूस नहीं होना है सिलेबस। सो प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग आल्सो इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन में यूज होता है, इंटीग्रेशन में यूज होता है, हर जगह यूज होता है। ओके, सो हियर 2-3 प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं, बट कुछ प्रॉपर्टी अच्छे से पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग मेथड, ये जो हम लिखते हैं ना साइन इनवर्स यहां पर, और साइन ऑफ दिस यहां पर जो वैल्यू लिखते हैं, सपोज यहां पर हमने x लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, x, सो x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कंसीडर करना है ऑलवेज। ओके, यहां पर अगर हमने x लिखा है तो x किसको बिलोंग करना चाहिए,
पहले अच्छे से समझना है। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स इज अ फंक्शन, जैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, एफ एक्स टू वाई, सो एफ के सामने यहां पर किसका एलिमेंट लिखते हैं, टेल मी, यहां पर किसका एलिमेंट लिखते हैं, हेलो, फंक्शन एफ एक्स टू वाई, देन फंक्शन एफ ऑफ, यहां पर क्या लिखते हैं, एनीवन, X. एक्स लिखते हैं। एक्स किसका एलिमेंट होता है, इसका किसका, एक्स का, Domain, sir. डोमेन का। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, वो जो टेबल बताया था ना, साइन इनवर्स का डोमेन है -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। तो साइन इनवर्स के सामने जो एलिमेंट है वो इसके डोमेन का है, सो x बिलोंग्स टू क्या होना है, -1 to 1। नाउ साइन ऑफ x, साइन, ओनली साइन, साइन का भी डोमेन लिखा था। साइन का डोमेन क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज अगर कंसीडर करेंगे, डोमेन तो ये लिखा था होल रियल नंबर, बट प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कंसीडर करेंगे तो उल्टा, जो साइन इनवर्स का था उसका जस्ट ऑपोजिट साइड में जो है साइन ऑफ एंगल, सो ये किसको बिलोंग करेगा, -π/2 to π/2। तो साइन इनवर्स x लिखना है, मींस x की जो वैल्यू है ना -1 to 1 के बीच में होना है, और साइन ऑफ x लिखना है, सो x किसको बिलोंग करेगा, -π/2 to π/2। दिस प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करेंगे तब, बिकॉज साइन का डेफिनेशन ऐसा है, साइन का डेफिनेशन, साइन फंक्शन का डेफिनेशन, डोमेन की जगह सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज है -1 to 1, बट हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट किया था कि इसमें इस जगह पे क्या क्या यूज किया था, इनवर्स डिफाइन करने के लिए इसको बना दिया था -π/2 to π/2, ये बनाया था। जब ऐसा लेते हैं तो ऑन टू होता तो इनवर्स डिफाइन होता, तो इनवर्स डिफाइन होता तो यहां से इसमें डिफाइन होता है। सो ये साइन इनवर्स के सामने जो लिखा है वो वहां बिलोंग करता है, और जो साइन के सामने लिखा है वो उसमें बिलोंग करता है। ओके, अब सपोज ऐसा लिखा है यहां पर, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स इफ x बिलोंग्स टू, क्या लिखना चाहिए, देखो अंडरस्टैंडिंग मेन है, समझना मेन है, नहीं तो फटाफट लिख देंगे ना क्वेश्चन का आंसर, कुछ समझ में आने वाला नहीं। सिंपल सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में जितना भी है उतना अगर अच्छे से समझ लेंगे ना, वेरी वेरी सफिशिएंट। ओके, सो यहां पर साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा हुआ है, और देखो साइन इनवर्स और साइन है, हम दोनों को हटा दे रहे हैं और x लिख दे रहे हैं, तो x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, x किसको बिलोंग करना चाहिए, यहां पर ये चीज समझना है। साइन इनवर्स साइन एक्स, x किसको बिलोंग करेगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x इफ x बिलोंग्स टू, साइन के सामने कौन सा एलिमेंट लिखा जाता है, टेल मी, अभी तो करके आया, साइन के सामने क्या लिखते हैं, एंगल, तो ये x किस में बिलोंग करना चाहिए, -π/2 π/2, और साइन इनवर्स के सामने जो लिखा रहता है वो कहां रहता है, साइन इनवर्स के सामने जो लिखा है ये x कहां बिलोंग होना चाहिए, ये है मेन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। साइन के सामने x लिखा है, दैट इज x क्या होगा, -π/2 to π/2 बिलोंग करेगा, और ये जो साइन इनवर्स के सामने साइन लिखा है, तो ये x क्या होगा, -1 to 1, एनी रियल नंबर बिटवीन दिस टू। सिमिलरली यू कैन डिफाइन फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, cos के लिए भी, मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स साइन हट गया x आ गया, साइन एंड साइन इनवर्स हट गया x आ गया, बट ये जो वैल्यू होता है प्रिंसिपल रेंज का होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज का वैल्यू होना चाहिए, बिकॉज यहां पर भी ये साइन x x, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज का वैल्यू है, और यहां पर भी मींस ये साइन इनवर्स एंड साइन यू कैन कैंसिल आउट इफ ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू वाले का होना चाहिए, क्लियर है। यहां पर भी साइन है, साइन इनवर्स है, ये हटा दे कब है, एनी टाइम नहीं होगा, जब ये वाला वैल्यू प्रिंसिपल वाले वो डोमेन और रेंज में हो तब, ये है इसका मीनिंग। ओके, सो सिमिलरली यू कैन राइट फॉर ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रिमेनिंग 5, जैसे ये लिख सकते हैं cos
inverse cos of x equals to x. If x belongs to what? ये x कहां पर बिलोंग करना चाहिए? cos के सामने x लिखा है, एंगल है, और cos के लिए जो क्या था? रेंज था. cos इनवर्स डिफाइन किए तो उसमें रेंज था, तो उस रेंज वाला वैल्यू में होना है. ये क्या रेंज है इसका? 0 to पाई बाई पाई, ये रेंज. सिमिलरली यहां पर अगर cos लिखे और यहां cos इनवर्स लिखे तो ये x होगा. कब? cos इनवर्स x. x बिलोंग्स टू, अगर समझ में आया ना, एनी वन टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x. x किसको बिलोंग करेगा बताओ? cos है, cos इनवर्स x है, cos इनवर्स के सामने x लिखा हुआ है, तो x किसको बिलोंग करेगा? एनीवन. अभी जैसे साइन का करवाया था, cos इनवर्स का देखो डोमेन क्या है, रेंज क्या है, उसी में से तो आएगा ना. क्या होना है? cos इनवर्स के सामने x लिखा है, तो cos इनवर्स का डोमेन क्या था? यही तो था जो साइन का होता है. तो इसकी वैल्यू क्या होना है? -1 to 1, ऐसे केस में होना है. एंड रिमेनिंग ऑल द फॉर्मूलास यू कैन राइट फॉर रिमेनिंग 4 फंक्शंस इन प्रिंसिपल वैल्यू रेंज. मतलब cos इनवर्स cos एंड cos इनवर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल जस्ट ऐसे लिखते थे ना, tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू व्हाट. सो क्या कर रहे हैं इसमें? क्या करना है? tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाई 4. tan इनवर्स 1 की वैल्यू, tan इनवर्स 10 पाई 1 के जगह हमने 10 पाई बाई 4 लिखा. अब ये tan इनवर्स और tan ये दोनों कैंसिल आउट होकर पाई बाई 4 हो गए. इफ दिस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू व्हाट? 10 के सामने लिखा हुआ है. सो ये tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में होना चाहिए, तब उसको पाई बाई 4 लिख सकते हैं, अदरवाइज नॉट. ये टेक्निक है. सो यहां पर वो है, होता है करके इसको पाई बाई 4 लिख सकते हैं. सो दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला. इनवर्स 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 सब के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैंसिल आउट कर सकते हैं. क्लियर है? हेलो, सब लोग ध्यान दे रहे हो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. जो मैंने बोला फॉर्मूला समझ में आया? देखो अभी इफ यू टेक रेफरेंस बुक, बोलने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आर डी शर्मा ले लिए, ये ले लिए, इतना मोटा मोटा बुक ले लिए, बट केवल क्वेश्चन करने से नहीं होता है. एनसीईआरटी की बुक में जितने फॉर्मूला है डीपली यू हैव टू स्टडी इट, उसी से पूरा आंसर निकल आता है. और 70 से 80% मार्क्स का क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी से आता है. बट अच्छे से समझना है, तब तो लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे, है ना. सो यहाँ पर जैसे हम लोग ये सब कैंसिल कर रहे थे ना, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है इसमें, बट आगे का है तो अभी बता रहा हूँ इसमें, तब इसको क्लियर होगा. ओके. सी एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर, एवरीवन सीरियसली देखना इसको, है मिसलेनियस का है. फर्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6. cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 इसकी वैल्यू ये निकालना है. ये फर्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का, है ना. तो इसका आंसर निकालना है. अभी जो बताया था cos इनवर्स एंड cos ये सब कैंसिल आउट हो जाता है ना. cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 इसकी वैल्यू लिखना है. सो अभी क्या कर रहे थे? cos इनवर्स cos कैंसिल कर देते थे, cos इनवर्स कैंसिल करते थे. यहां कैंसिल डायरेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पर भी वही वैल्यू आया. cos के सामने ये है, ये एंगल है, तो cos इनवर्स का जो रेंज में आता है क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में? नो. cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है? टेल मी. cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज
हेलो, एनीवन? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ कॉस इनवर्स ए? 0 pi. 0 पाई इंटरवल ना, 0 पाई इंटरवल। Closed. ओके, सो ये जो वैल्यू है क्या है, इस इंटरवल में है? इसका भी रिप्लाई होना चाहिए ना, ये वैल्यू है इस इंटरवल में, ये ग्रेटर देन पाई है ना। 13 बाई Yes, sir. 6 पाई, 13 पाई बाई 6, दिस ग्रेटर देन पाई ना, ये तो ग्रेटर देन पाई है, बिकॉज 13 बाई 6 मीन्स क्या है, ग्रेटर देन 1, तो ये जो है ग्रेटर देन पाई है, सो इस इंटरवल में नहीं है, सो वी कैन नॉट राइट कैंसिल आउट करके 13 पाई बाई 6, आंसर नहीं होगा। यहां पर वो वैल्यू होना चाहिए जो इस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में हो, तो इसको फिर अभी एडजस्ट करना है। किस टाइप से एडजस्ट करना है, बिकॉज वी नो फॉर्मूला, ये कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स से कैंसिल तभी होगा जब वैल्यू उसके प्रिंसिपल रेंज में आना चाहिए। सो यहाँ पर 13 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, जस्ट यूज द फॉर्मूला ऑफ पाई प्लस माइनस, सो हियर व्हाट, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई प्लस 13 पाई बाई 6 इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ये देखो इसी को लिखा, बिकॉज अभी इसको कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, वो इनफाइनाइट वैल्यूज होता है। सो यहाँ पर सेटिंग करना है कि यहाँ का जो वैल्यू है वो 0 टू पाई के बीच में आ जाए, 0 टू पाई के बीच में इस वैल्यू को लाना है, 0 टू पाई के बीच में। इसके लिए अभी क्या है, कॉस का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, कॉस 13 पाई बाई 6, तो 13 पाई बाई 6 को ये लिख सकते हैं 6 into 2 12 पाई प्लस 1 13 पाई बाई 6। नाउ cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या वैल्यू होता है, हेलो, cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू 2 पाई तो ये हो गया, यहां पर वैल्यू है cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होता है, सो cos पाई बाई 6 हो जाएगा ये, सिंस cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा 2 पाई मीन्स 360 ये होता है, तो इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, एंड इट कैन बी रिटन लाइक दिस। नाउ ये जो पाई बाई 6 है, दिस बिलोंग्स टू पाई 0 टू पाई, ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ गया, सो इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। ये अब यहां पर ऐसे लिखना है, हाँ यस, नाउ यू कैन कैंसिल आउट दिस टू, इस जगह पे पाई बाई 6 आ गया, ये वैल्यू इस रेंज में आ गया, सो ये दोनों कैंसिल आउट, यहां लिखना पड़ेगा सिंस पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 पाई। 0 पाई लिखने का मीनिंग क्या है, ये जो कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ये एंगल बिलोंग करता है, दैट्स व्हाई यू कैन कैंसिल आउट दिस टू एंड पाई बाई 6, सो इसकी जो वैल्यू है वो पाई बाई 6 नॉट 13 पाई बाई 6। सो फर्स्ट फॉर्मूला में वही है, साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस, टेन इनवर्स टेन, कॉट इनवर्स कॉट, एंड तभी कैंसिल आउट होगा जब वो एंगल जो है वो किस पे होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में। और इफ ऐसा आता है कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x वाला, तो ये क्वांटिटी फिर किस में होना चाहिए, -1 to 1 में होना चाहिए, तभी लिख सकते हैं। ये तो यहाँ पर कॉस इनवर्स के सामने x है, सो वो -1 to 1 में होना चाहिए। सो फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला इज दिस, कैंसिल आउट साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, एंड सभी के लिए 6 फंक्शन के लिए होता है। ओके, सेकेंडली फॉर्मूला है बहुत सारे है ना, तो 3-4 सेट का फॉर्मूला एक दिन में करेंगे ना, 2-3 दिन में पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, बट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज पूरे फॉर्मूला रिवाइज कर लेना है 11th क्लास के, ऑल द फॉर्मूलास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, सो जस्ट नोट डाउन, ये जो फॉर्मूला होता है इसमें साइन इनवर्स 1 by x इक्वल्स टू
cosec inverse x. Cos inverse 1 by x equals to sec inverse x. Sin cos 10. Tan inverse 1 by x equals to cot inverse x. पहला फॉर्मूला हुआ, ये दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला है. ओके, ये तीनों फॉर्मूला. यहाँ पर भी ये सब वैल्यू जो है ना, ये सब वैल्यू कहाँ, ये जो cos इनवर्स के सामने x लिखा है, cosec इनवर्स के सामने, तो cosec इनवर्स का जो डोमेन है, उस डोमेन में ये बिलोंग करता है x. सो ऑलवेज राइटिंग जरूरी नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ये cosec इनवर्स के सामने x लिखा हुआ है, दैट इज x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द cosec इनवर्स of for the principal value. So yeah, similarly ये सब के लिए है. So here see sin inverse 1 by x, यहाँ पर 1 by x लिखा है और यहाँ पर x लिखा हुआ है. We know sin and cos, cosec inverse होता है एक दूसरे का. So you can prove this three. ये कभी भी यूज कर लेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना, इसको यूज कर लेना है. ओके, ये सब और यूज इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, बस एक घुमा फिरा के लिखना होता है और कुछ नहीं. जैसे ये cosec इनवर्स x को y ले लेते हैं. लेट cosec इनवर्स x को y ले लिया तो क्या हो जाएगा ये, वी कैन राइट x इक्वल्स टू व्हाट, cosec y. ओके, अब ये cosec y लिया हुआ है, तो अब इसको क्या करें कि साइन बनाना है, इसको हमने y ले लिया. ओके, cosec इनवर्स को अब क्या किया है, cosec इधर चला गया, तो अगर इसको इनवर्स करें तो क्या बन जाएगा, 1 अपन cosec y. और 1 अपन cosec मीन्स व्हाट, sin y. और फिर यहां से इनवर्स करें तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 1 by x इक्वल्स टू y, और y इक्वल्स टू क्या है, cosec इनवर्स x. सो प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, बट जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. इस टाइप से सभी का प्रूव हो जाएगा. इसको y ले लो, इसी टाइप से लिख दो तो ये आ जाएगा. सिमिलरली इसको भी y ले लो, इसको भी y ले लो, एंड यू कैन डू इट. समझ में आया यहाँ प्रूफ कैसे हुआ. ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये राइट हैंड साइड, ये इसको क्या ले लिया, लेट y दिस इज इक्वल टू y, देन x इक्वल टू क्या होगा, ये cosec इनवर्स को उधर ले गए तो x इक्वल टू cosec y. अब इनवर्स कर दिए तो 1 by cosec बनाया, क्योंकि साइन बनाना था, इधर साइन है ना, तो साइन होना था, तो 1 अपन cosec मींस साइन, तो साइन हो गया, और इधर 1 by x ही रहा. अब क्या फिर साइन को इधर लाके इनवर्स बनाया, तो साइन इनवर्स 1 by x इक्वल टू y इक्वल टू, और y मींस व्हाट, cosec इनवर्स x. सो साइन इनवर्स 1 by x इक्वल टू cosec इनवर्स x. सो दिस इज फर्स्ट. सिमिलरली यू कैन डू फॉर दिस. सो ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है. थर्ड फॉर्मूला, थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला आर जो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू, टेल मी एनीवन, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, क्या होता है साइन माइनस थीटा, हेलो, माइनस साइन थीटा. माइनस बाहर आ जाता है ना. सिमिलर प्रोसेस में यहां पर 6 के लिए अलग अलग, एक तो साइन 10 एंड cosec में वो फॉलो हो जाता है, दैट इज साइन इनवर्स माइनस एक्स ले रहा हूं, इसमें भी माइनस बाहर आके साइन इनवर्स एक्स हो जाता है. ऑल द फॉर्मूलाज फॉर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज. सिमिलरली साइन है और साइन एंड 10 एंड cosec, इन तीन का अलग अलग है यहाँ पर, है ना. साइन इनवर्स x एंड cosec इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस cosec इनवर्स x, एंड 10 के लिए भी होता है, 10 इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस 10 इनवर्स x. Just like similar, sin minus theta equal to minus sin theta. तो बट sin इनवर्स माइनस is equal to minus sin, माइनस आउटसाइड आ जाता है. कहाँ sin, cosec और 10 के लिए. बट बाकी जो रिमेनिंग 3 है, मिस cos, sec एंड cot. cos इनवर्स
माइनस एक्स इक्वल्स टू एंड कॉस देन सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू एंड होता है और कौन सा कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू। इसमें जस्ट माइनस नहीं आता बिकॉज वी नो कॉस माइनस थीटा को एब्जॉर्ब हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, बट यहाँ पर साइन में टेन में कोसेक में वहां पर माइनस बाहर आता था, तो ये फॉर्मूला यहाँ फॉलो होता है जस्ट लाइक सिमिलर, बट इनमें माइनस बाहर नहीं आना है। बट राइटिंग कैसे करना है, इस टाइप से पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। प्रूफ बहुत सिंपल है, प्रूफ इज नॉट रिकॉर्ड, सो ओके ये सब होता है। क्लियर हुआ? देखो यहां पर इस सेट का फॉर्मूला, बिकॉज एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस ना एनी फॉर्मूला वी कैन यूज, ये सब याद रहना चाहिए। साइन कोसेक टेन सब में माइनस रहता है तो माइनस बाहर आ जाता है, बट ये जो कॉस सेक एंड कॉट में नहीं होता है, तो पाई माइनस करके वैल्यू आता है। सबका प्रूफ सेम पैटर्न में है, जैसे यहाँ पर किया था ना, इसको y ले लिए थे, यहाँ भी इसको y ले लेंगे तो प्रूव हो जाएगा, इसको भी y ले लेंगे प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन डू फॉर ऑल। सो दिस फॉर्मूला आर इंपॉर्टेंट, दिस थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला, ओके। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इसमें भी वही करते हैं, इसको y ले लो, दो लाइन लिखना है, जैसे सपोज लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर वही फॉर्मूला, साइन y इक्वल्स टू माइनस एक्स। सो हियर हमको उस टाइप से लिखना है। सो यहाँ पर ये y, यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन y, ओके। सो क्या करना है अभी, x इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा को माइनस को अंदर कर सकते हैं, सो यहाँ पर क्या करना है, साइन ऑफ माइनस y। सो वी कैन सी साइन इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस y। सो मीनिंग क्या हुआ, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू, बिकॉज ये साइन है तो ये इनवर्स किधर आएगा, तो इधर माइनस y हो जाएगा। देन साइन इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस ऑफ y, y मींस व्हाट, दिस। सो साइन इनवर्स माइनस x, तो साइन इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू ये माइनस को इधर ले आओ तो ये बन गया। सिमिलर पैटर्न में ये हो जाता है, बट इसमें कैसे होना है, या तो पाई कैसे आएगा, ये तीनों में तो वही पैटर्न है, ये ऐसे लिखना है, और साइन इनवर्स माइनस एक्स था तो माइनस एक्स को एक्स में कन्वर्ट करना है, बिकॉज उधर एक्स है ओनली। सो ये माइनस साइन को इधर ले गए और इसको इसके अंदर ले गए, फिर इसको इधर लाया तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, प्रूव हो गया। यहां भी पाई लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पाई माइनस और प्लस। सपोज दिस इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, सपोज इसमें पाई किस टाइप से आना है, ये है, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस को सिंगल करना है विदाउट माइनस, दैट्स व्हाई ये माइनस साइन को उधर ले जाओ, तो x इक्वल्स टू माइनस कॉस वाई, ओके। नाउ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस वाई, सो इट कैन बी रिटन बाय कॉस ऑफ, क्या लिखूं यहां पर बताओ, कोई अगर ध्यान से देख रहे हो ना तो समझ जाओगे क्या लिखना है, बिकॉज इसको सेम पैटर्न में सब सॉल्व होता है। यहां पर क्या लिया, इसको y लिया, प्रूफ करने में x को सिंगल बनाना है विदाउट माइनस साइन, सो दिस इज इक्वल्स टू y, लेट दिस इज इक्वल्स टू y, देन क्या हो जाएगा, cos y इक्वल्स टू माइनस x, माइनस को उधर ले गए ये, अब माइनस cos y, अब cos ऑफ समथिंग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस को अंदर तो नहीं कर सकते, बट पाई प्लस माइनस में तो सेट हो जाता है ना, क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, हेलो, cos पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा में सेट करना है, तो यहां कुछ लिखो यही वैल्यू मिले, टेल मी, फास्ट करो क्या होगा, हेलो, क्या लिखो यहां पर, एनीवन, अभी आप समझ रहे थे तो इसको बोलो क्या लिखना है यहां पर, माइनस कॉस वाई होना है, तो कॉस ऑफ दिस व्हाट, अभी तक तो लिखते आ रहे थे बार बार ना, उस समय भी माइनस वाई कैसे हो जाएगा, माइनस तो साइन में होता है, साइन को अंदर ले सकते हैं उसमें,
साइन में अंदर बाहर होता है, कॉस में नहीं होता है ना। ऐसा लिखते थे ना, माइनस हाफ मिला, माइनस कॉस पाई बाई 3 लिखा, फिर माइनस को हटाने के लिए क्या करते थे, अभी तो करके आए बार बार, पाई माइनस पाई बाई 3 करो तो हो जाता है, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। या पाई बाई 3 की जगह वाई लिखा है, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, अभी तो ऐसा करके आ रहे थे बार बार, पाई माइनस वाई, गुड, पाई माइनस वाई ये लिखना है। अब जैसे ये लिख दिया, अब सॉल्व करें, यहाँ हट गया माइनस साइन, सो अब कॉस किधर लाओ, कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस वाई। ओके, अब इसको y को इधर ले आते हैं, कॉस इनवर्स को उधर ले जाते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और y मींस व्हाट, यही तो है। सो क्या हो गया, कॉस इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये फॉर्मूला हो गया, प्रूफ फर्स्ट फॉर्मूला, यहाँ पर ये चेंज करके, तो cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, ये फॉर्मूला। सिमिलरली फॉर दिस यू कैन डू। सो ये थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला, these are useful for solving question, ओके। तो इसमें अभी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 2.12, बट फॉर्मूला से डिस्कस करना पड़ेगा ऊपर, ओके। पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं पूरे। सो ये सब फॉर्मूला है, ओके। फर्स्ट सेट कैंसिल आउट, साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस, ये सब था। सेकंड सेट क्या था, साइन इनवर्स 1/x तो कॉसेक इनवर्स x, साइन इनवर्स टेन इनवर्स 1/x तो कॉट इनवर्स x, ये था। थर्ड सेट ये है। नाउ फोर्थ सेट फॉर्मूला, फोर्थ सेट फॉर्मूला इज प्लस फॉर्मूला, ओके। साइन इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह यूज होता है ये जो अभी लिखने वाला हूँ। फोर्थ सेट का फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, साइन कॉस, फिर कॉस सेक टेन कॉट, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, एंड साइन कॉस टेन कॉट, और कौन सा पेयर बचा, कॉस सेक, नो कॉस सेक नॉट, कोसेक एंड सेक, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये फॉर्मूला है। कॉम्बिनेशन किस कैसा है, देखो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x x x x, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, इनका एडिशन इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है। ये कभी भी यूज कर लेते हैं किसी भी जगह पे, जैसे कॉस इनवर्स की वैल्यू लिखते हैं तो पाई बाई 2 माइनस दिस कर लेते हैं, दैट इज कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स x। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। इसका भी प्रूफ करना भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें से किसी भी एक को ना, जैसे फर्स्ट वाले को, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, सपोज इसी को y ले लेते हैं, दोनों में x है, सो ओनली दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू y। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन y इक्वल्स टू x, सो x इक्वल्स टू साइन y, ये जो साइन y है, इस साइन को अपना कॉस में कन्वर्ट करो, बिकॉज साइन y की जो वैल्यू है वो तो साइन इनवर्स x है, बट कॉस भी चाहिए, तो साइन को ना कॉस में कन्वर्ट करना है। सो साइन थीटा इक्वल्स टू, जस्ट लाइक दिस, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ व्हाट, क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा में बताओ, 90 प्लस माइनस थीटा में होता है ना, क्योंकि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में, 90 प्लस माइनस में, पाई में नहीं चेंज होता है, सेम रहता है, और 90 प्लस माइनस में चेंज होता है। सो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ व्हाट, हेलो, साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ, क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस, सो पाई बाई 2 प्लस और पाई बाई 2 माइनस, क्या लिखूं, हेलो, ये सब बहुत जरूरी है ना, 11th क्लास का है। टाइम ओवर हो गया, बट टेल मी, हेलो एनीवन, इसको अभी यहाँ खत्म करते हैं ना,
Anyone reply me? Sin theta equal to cos of what? Pi by 2 plus theta, pi by 2 minus theta. क्या लिखूं? pi by 2 plus theta. पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा. प्लस थीटा लिखोगे तो क्या होगा? यहां पर आएगा ना, यहां पर प्लस थीटा मतलब पाई बाई 2 प्लस यहां पर cos नेगेटिव होता है तो गड़बड़ हो जाएगा ना. फिर यहां पर पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, ऑल पॉजिटिव. सो cos एंड cos चेंज होता है साइन में. सो sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा. सो sin y इक्वल्स टू, वी कैन राइट sin y इक्वल्स टू cos पाई बाई 2 माइनस y. ये अब ये x इक्वल टू दिस. सो x ये देखो अब क्या वैल्यू आ गया, x इक्वल टू cos ऑफ दिस. तो cos को इधर लाके इन्वर्स कर दिया. cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस y एंड y इक्वल टू sin इनवर्स x. सो ये y को इधर ले आया, क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x प्लस y. y मींस व्हाट? दिस sin इनवर्स x. sin इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2. ये आ गया रिजल्ट. इसी टाइप से कन्वर्ट करके इसको y लेके इसको y लेके यू कैन प्रूव इट. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके, सो आई विल कंटिन्यू द क्लास ऑन मंडे फ्रॉम हियर. ओके, यहां से मंडे को कंटिन्यू करेंगे ना, फॉर्मूला पूरा होने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, हेलो. Yes, sir. Thank you, sir. ओके ओके, Thank you, sir. हाँ ओके, क्लोज कर रहा हूँ अभी, है ना. ठीक है, Thank you. ओके.